ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਲਓ, 2 ਬਣਾ ਲਓ, CBI ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ IPS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। दूसरा मैं ये कहूँगा, देखो कि जो रीइन्वेस्टिगेशन की गल कर रहे हैं, दोबारा इन्वेस्टिगेशन, तुसी एक सीट बना लो, 2 बना लो, CBI ले आओ, तुसी जो मर्जी ले आओ, रीइन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। टाइम पास जरूर होगा, लोगों को मूर्ख जरूर बनाया जाएगा। दूसरी गल यह है कि जो चलान मैं दिता सी, जो रिपोर्ट, ना तो वो रिपोर्ट सरकार नूं गई सी, कई लोगों को भुलेखा है कि ये रिपोर्ट सरकार नूं दिती गई सी, ना ही ये रिपोर्ट मानयोग हाई कोर्ट दे विच दाखिल हुई सी। साडी रिपोर्ट 9 चलाना दे रूप दे विच फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत दे विच दाखिल की गई सी। उन्हां 9 चलाना चों 5 चलान जिहड़े ने उन्हां नूं क्वैश कर दिता गया है, खारिज किया गया है। 4 चलान हुण भी जिंदा ने, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा हाँ कि देखो जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट मानयोग जिला अदालत फरीदकोट दे विच है। मैनू ये पता नहीं है कि वो रिपोर्ट किस तरह, मतलब बिना रिपोर्ट देखे हुए जो फैसला है, मैं फैसला ना तो पढ़िया हाँ, ना मैनू पढ़ना है, ना ही मतलब मैनू उसकी लोड़ है। मैनू पहला तो पता सी, ठीक है, इस दे बारे पहला तो पता सी, तो मैं उस दे उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहता हाँ, कोई किंतु परंतु नहीं। जो फैसला आया है मानयोग हाई कोर्ट का, जो फैसला है उस दे नाल मैनू कोई भी, सुनो तो सही, रिपोर्ट इन्नी तनदेही दे नाल बनाई सी तां कोर्ट ने खारिज क्यों कीती? मेरी गल तो सुनो। मैं
ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੋ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ है, पूरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन रही है। एक एक लाइन जो है ना अपने आप दे विच सबूत है। ठीक है, तुसी जो सवाल किया कि खारिज क्यों हो गया मैनू नहीं पता है। जेकर मानयोग जिला अदालत सैशन अदालत फरीदकोट वालों साडे गवाहां दा बयान लिया जांदा, साडे वालों जो सबूत उत्थे पेश किए गए हैं उन्होंने सबूतों को देख के गवाहां का बयान दे के जो कुछ भी फैसला आउंदा सानू मंजूर सी, लेकिन साडे गवाहां का बयान नहीं होया। मैनू मौका नहीं मिला कि अपने गवाहां नू अदालत के सन्मुख पेश कर सका। मैनू मौका नहीं मिला कि जो अदालत दे विच असीं सबूत पेश किए हैं वो जो सबूत ने उन्हां सबूतों नू वेख्या नहीं गया, क्योंकि निपटारा इहदा होना है फरीदकोट की जिला अते सैशन अदालत दे विच। मैं दोबारा ये कहना चाहता हाँ कि कोई भी व्यक्ति उस चलान के किसी भी पहलू के उत्ते मेरे नाल डिस्कस करना चाहता है, जनतक तौर पर व्यक्तिगत तौर पर आके डिस्कस कर सकता है। एक एक लाइन उस चलान का जो लिखिया गया है वो गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा दे नाल लिखिया गया है। मेरे अंदर वो काबलियत नहीं सीगी कि मैं इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर सकता सी। जो इन्वेस्टिगेशन होया है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कृपा दे नाल होया है। तो कोई भी व्यक्ति जेकर चाहता है, कोई भी कानून का जानकार होवे, किसी नू भी बहुत हंकार होवे, वो मेरे नाल आके डिस्कस कर सकता है। मेरी गल सुनो, जो बेअदबी करवा सकते ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करवा सकते ने, ठीक है कि नहीं, वो कुछ भी कर सकते ने, मैनू कोई परवाह नहीं है उन्होंने कोई स्टेटस नहीं है। हुण मैं दोबारा आज दा जिहड़ा सन्मान समारोह है, मैं देखो मैं ये दावे दे नाल कह सकता हाँ कि मानयोग जथेदार श्री दादूवाल साहब दे नाल मेरी आज पहली मुलाकात इत्थे हो रही है। आप जी ने भी मीडिया दे विच बयान दिता सी कि कोई मुलाकात नहीं है। ये असी श्री हरमंदिर साहिब जी दे सामने आज पहली मुलाकात हुई है। इन्हां दी रहनुमाई दे विच सारे संत समाज दे लोग, संत महापुरुष, वख-वख धर्मां दे, वख-वख संप्रदावां दे सारे संत महापुरुष आए ने। मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवाद करदा हाँ। एक ऐसे तरीके का सन्मान मैनू उसे फरीदकोट दे विच दिता गया सी 2004 दे विच, जो गुरुद्वारा साहिब है सालाना समागम हुंदा है हर साल। एक सन्मान समारोह उत्थे होया सी। तुसी देखोगे बहुत वड्डा योगदान रहा उस सन्मान का कि मैं इस केस नूं, क्योंकि जदों मैं फैसला लिया कि वड्डियां दे उत्ते हाथ पा ही देना है, तो वो सन्मान मैनू उसे फरीदकोट का बार फरीदकोट दे विच बैठे हुए मैनू याद आ रहा है कि ऐसे फरीदकोट दे विच मैनू सन्मान मिलिया है। वो ऑनेस्टी का सन्मान सी। मैं कहा कि चलो जी चक दो काम, जेकर तुसी नहीं करोगे कोई होर नहीं कर सकता है। हुण सुनो मेरी गल सुनो, आज जो सन्मान इत्थे मिलिया होया है, मैनू नहीं पता है कि जो उस 2004 वाला सन्मान इत्थे तक लेके आया तो ये सन्मान मेरे हत्थे की करवाएगा मैनू पता नहीं है। लेकिन जो सन्मान हुंदा है, देखो एक सन्मान देने वाले का हाथ साफ होना चाहिए है, तो लेने वाले का किरदार भी होना चाहिए है। ठीक है, तो इस करके कईयां ने किंतु परंतु भी की। मैं कहा कि नहीं मैं जावांगा, क्योंकि सन्मान देने वाले का हाथ जेकर साफ है ना, तो सन्मान लेन दे विच ते मेरा किरदार साफ है। मैं श्री हरमंदिर साहिब जी के सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं हाजिर नाजिर जान के ये वादा करदा हाँ कि जो सन्मान मैनू मिल रहा है ते मैं अपने इस किरदार नूं होर आगे तक ले जावांगा, समाज की सेवा करांगा। ये जो इंसाफ की लड़ाई है, देखो आज तो शुरू हो रही है। ये ना समझो कि मैं नौकरी छड़ दी तो मतलब काम बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि मैं नौकरी छड़ दी। ये गुरु महाराज का हुक्म आया कि हुण ये नौकरी तुसी छड्डो, नौकरी दे विच रह के तुसी कमज़ोर हो गए हो, तो एक कमजोरी तुसी छड्ड दो। मैं इस IPS की नौकरी नूं छोटा नहीं समझदा हाँ, तो नहीं मैं कोई जज्बात दे विच आके छड्डिया। एक जंग की शुरुआत वास्ते उपरों मैनू आदेश आया, गुरु महाराज का आदेश आया, मैं ये नौकरी छड्ड दी। 22 साल की इस नौकरी के दौरान मैं सिर्फ संघर्ष किया, सिर्फ स्ट्रगल किया जी। तो उस स्ट्रगल के नाल जो कुछ भी मैनू प्राप्त होया
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 4 6 8 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ। ਸਿਆਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? जंग की शुरुआत हो रही है, मैनू क्यों पूछ रहे हो? जो हुक्म आएगा ना ऊपरों जिसने आदेश, मेरी गल सुनो, मैनू नहीं पता है, मेरी गल सुनो। तुसी नशा दे तस्दे थोक व्यापारी ने नशिया दे पंजाब दे विच 6वां दरिया बहा दिता, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं मेरी गल सुनो ना, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मेरी गल तो सुनो, जिन्हों ने नशिया का दरिया बहाया है पंजाब दे विच, नौजवानी बर्बाद की है, जिन्हों का टेलीविजन नैटवर्क चलता है, तुसी उन्हां दी जुबानी तुसी बोल रहे हो, उन्हां दी गल कर रहे हो। मैं तो बार बार यही कर रहे हैं कि ये नेटवर्क ही खत्म हो जाना है, सरकारी नेटवर्क बन जाएगा, जनता का नेटवर्क बन जाएगा, जनता की आवाज़ सब तो ऊपर रहेगी, क्योंकि जनता की आवाज़ दे विच परमात्मा की आवाज़ होंदी है, तो परमात्मा की आवाज़ ही ऊपर रहेगी। जो मैनू ऊपरों आदेश आएगा परमात्मा वालों, मैं वही कहांगा। आज की तारीख के विच मैं इस तो अलावा होर कुछ नहीं कर सकता। इंसाफ किदों मिलेगा लोकां नूं? इंसाफ मिलेगा जी, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ वास्ते जंग मैं देखो, मैं बार बार यही कहना चाहता हाँ कि मैं जो नौकरी तो इस्तीफा दिता तो कोई थक हार के नहीं दिता, एक इंसाफ वास्ते जंग की शुरुआत करने वास्ते मैं इस्तीफा दिता सी। इंसाफ मिलेगा, तुसी देख लेना, इंसाफ मिलेगा। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? मैं देखो, तुसी कोई भी सवाल इस तरह का ना करो, ठीक है ना जी। इस तरह का मैं बार बार यही कह रहे हैं कि जो मैनू ऊपर आदेश आएगा, मालिक परमेश्वर सब तो बड़ा है, जो वो मैनू आदेश करेगा समाज की भलाई वास्ते, ठीक है ना, इंसाफ वास्ते एक नवा पंजाब बनूगा जी, एक नवा पंजाब। तुसी देखोगे जो आज तो 100 साल 150 साल पहला जो पंजाब सीगा ना, वो पंजाब तुसी देखोगे। महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे तुसी सुनिया होगा, उस तो पहला भी तुसी देखो पंजाब बहुत ही मतलब उन्नत पंजाब सीगा, बहुत ही वधिया तुसी सोच सकते सी, ठीक है कि नहीं। ते जो उस तरह का पंजाब बनूगा वो सारे असीं मिल के करांगे, ठीक है ना।